Namaste to all. Myself, Devian Dr. Soman Shikawat, Department of Kaya Chikitsa, Faculty of Ayurvedic Sciences, JOT Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today, we will be discussing about osteoarthritis. Definition of OA or introduction of osteoarthritis is by far the most common form of arthritis. This is osteoarthritis is the most common form of arthritis and is a major cause of pain and disability in older people. It is characterized by focal loss of articular cartilage, subchondral osteosclerosis, osteophyte formation at the joint margin, and remodeling of joint contour with enlargement of affected joint. ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली आर्टिकुलर कार्टिलेज में इन्फ्लेमेशन होना और इन्फ्लेमेशन होके और डैमेज हो जाना। ठीक है, इसके अलावा सबकॉन्ड्रल ऑस्टियोस्क्लेरोसिस थिकनिंग हो जाना, ऑस्टियोफाइट बन जाना, जॉइंट कॉन्टूर जो है वो अफेक्टेड हो जाना। दिस इज कॉल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस। इन्हीं कारणों की वजह से पेशेंट को पेन और डिसेबिलिटी हो जाती है अफेक्टेड जॉइंट की वजह से। Epidemiology of the disease is the prevalence rises progressively with age, and it has been estimated that 45% of all people develop knee OA and 25% of hip OA at some point during life। जिंदगी में किसी न किसी स्टेज के अंदर आके सभी लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है फेस करनी पड़ती है। और इसमें भी अगर देखें तो लगभग 45% लोगों में नी ओए और 25% लोगों में हिप ओए के चांसेस होते हैं जिंदगी में किसी समय पर। There are major ethnic difference in susceptibility. The prevalence of hip OA is lower in Africa, China, Japan, and the Indian subcontinents than in European countries. That of knee OA is higher। इस तरह की कंट्रीज जो होते हैं वहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इस तरह की कंट्रीज जैसे इंडिया जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में, तो यहाँ जो है नी ओए के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं ड्यू टू वर्क एग्जर्शन। Pathophysiology of the disease is osteoarthritis is a complex disorder with both genetic and environmental component. Genetic factors are recognized as playing a key role in the pathogenesis of osteoarthritis. Family-based studies have estimated that heritability of OA ranges from about 33% at the knee to between 60 to 65% at the hip and hand, respectively. In most cases, the inheritance is polygenic and mediated by several genetic variants of small effect. Risk factor for osteoarthritis: genetic skeletal dysplasias, polygenic inheritance developmental abnormalities, developmental dysplasia of the hip, slipped femoral epiphysis. Repetitive loading is responsible in farmers, miners, and elite athletes. Adverse biomechanics, मैनिसेक्टमी कि इस तरह का कोई ट्रीटमेंट पेशेंट ने लिया हो और उसके बाद में पेशेंट को जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप कर गया हो। मैनिसेक्टमी, लिगामेंट रप्चर, पेजेट्स डिजीज, ओबेसिटी, साइटोकाइंस रिलीज फ्रॉम एडिपोज टिश्यू में प्ले अ रोल। इसके अलावा ट्रॉमा, ट्रॉमा की वजह से नी डैमेज हो गया हो या और भी किसी तरह का जॉइंट अगर अफेक्ट हो गया है तो। हार्मोनल एचआरटी, एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, महिलाएं जो है एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज लेती हैं, दैट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस।
एरोमेटेज इनहिबिटर्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए लिए जाने वाले एरोमेटेज इनहिबिटर्स की वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है। Degeneration of articular cartilage is the defining feature of osteoarthritis. This is the defining feature, especially degeneration in articular cartilage. Under normal circumstances, chondrocytes are terminally differentiated cells, but in osteoarthritis, they start dividing to produce nest of metabolically active cells. Initially, there is increased rate of production of matrix component with accelerated degradation of the major structural component of cartilage matrix, including aggregate and type 2 collisions. Fall in the concentration of aggregate in cartilage matrix make the cartilage vulnerable to load-bearing injuries. Fissuring of the cartilage surface fibrillation leads to the development of deep vertical clefts, localized chondrocyte death and decreased cartilage thickness. कि मेटाबॉलिकली जो एक होता है ना टर्मिनल सेल्स होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में ये एक्टिव रह जाते हैं, जिसकी वजह से मैट्रिक्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। मैट्रिक्स प्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स जो होता है ज़्यादा होने की वजह से जो एक जो एग्रीकेन है और टाइप 2 कॉलेजन जो होते हैं इनमें स्ट्रक्चरल डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एग्रीकेन का कंसंट्रेशन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण जो होता है एक भंगुरता जो होती है जोड़ की जो एक जो होता है ना भंगुर जोड़ होता है, और ऐसी कंडीशन में अगर उसके ऊपर लोड जो है अप्लाई किया जाएगा या बहुत ज़्यादा उसके ऊपर वजन डाला जाएगा या उसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसमें क्या हो जाते हैं, फिशरिंग होना शुरू हो जाती है कार्टिलेज की सरफेस के अंदर। कार्टिलेज की जो सरफेस है वहाँ फिशरिंग होना शुरू हो जाती है, वहाँ डीप वर्टिकल फ्लैप्स बन जाते हैं, जिनकी वजह से कार्टिलेज की जो थिकनेस होती है वो डिक्रीज हो जाती है। आप ये इमेज के अंदर देख सकते हैं कि कुछ एक्सटर्नल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर जैसे ट्रॉमा या ओवरलोड की क्या घुटने की चोट लग गई है, किसी और पर्टिकुलर जॉइंट को जो है दुर्घटना की वजह से जो जॉइंट है वो डैमेज हो गया है, या किसी पर्टिकुलर जॉइंट का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस पर बहुत ओवरलोडेड है ऐसे, और की वजह से भी ये हो सकता है। कुछ एंडोजीनस फैक्टर्स होते हैं इसके ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रीडिस्पोजिशन के अंदर, जैसे एज हो गया या जेंडर हो गया, पेशेंट का जेनेटिक्स है, या पेशेंट का हाई बीएमआई है, वेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से। ऐसी कंडीशन की वजह से आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जॉइंट में किस तरीके से डैमेज होता है। अर्ली स्टेज के अंदर कार्टिलेजिनस एडिमा देखने को मिलता है, और लेट स्टेज के अंदर कार्टिलेज जो होती है वो डैमेज हो जाती है और कार्टिलेज लॉस होना शुरू हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं साइनोवियम जो है साइनोवियल इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है इमेज में। लेट स्टेज में आप देख सकते हैं ऑस्टियोपेटिक चेंजेस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और सब कॉन्ड्रल बोन रिमॉडलिंग, इसके वजह से पेशेंट को किस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं कि पेशेंट को पेन होगा, पेशेंट को डिसेबिलिटी होगी, और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो पेशेंट की रिड्यूस हो जाती है। अगर हम डिजीज के क्लिनिकल फीचर्स की तरफ जाएं कि किस तरह के क्लिनिकल फीचर डिजीज के अंदर आते हैं, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हैज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन मेनली टारगेटिंग द हिप, knees, PIP, proximal interphalangeal joints, and DIP, distal interphalangeal joints of the hand, neck, and lumbar spine. The main presenting symptom are pain and functional restriction. These are the main presenting symptom in the patient of osteoarthritis: pain and functional restriction. The pain may relate to increased pressure in subchondral bone.
This is mainly night pain, trabecular microfractures, capsular distension, and low-grade synovitis. Pain may also result from bursitis and enthesopathy secondary to altered joint mechanism. सिम्टम्स एंड साइन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस पेन कि किस तरीके का पेन जो होता है उसकी प्रेजेंटेशन पेशेंट को देखने को मिलती है। तो यहाँ अगर हम देखें इंसीडियस ऑनसेट ओवर मंथ्स और ईयर, वेरिएबल और इंटरमिटेंट नेचर ओवर टाइम, गुड डेज एंड बैड डेज, mainly related to movement and weight bearing relieved by rest. यहाँ पे अगर ब्रीफ में देखिए, ओनली ब्रीफ लेस देन 15 मिनट मॉर्निंग स्टिफनेस एंड लेस देन 5 मिनट गैलिंग आफ्टर रेस्ट। यहाँ पे पेशेंट को जो होता है ना मॉर्निंग में 15 मिनट से कम की या 15 मिनट की जो होती है ना जोड़े में अफेक्टेड जॉइंट के अंदर जकड़ाहट देखने को मिलती है, जो कि रेस्ट करने से पेशेंट को उसमें रिलीफ आ जाता है। और ये क्या पेशेंट की जो पेन है, पेन की टेंडेंसी ऐसी हो सकती है, वो कुछ महीने का भी हो सकता है, कुछ सालों का भी हो सकता है, इंटरमिटेंटली होता है, कभी होता है कभी नहीं होता। रेस्ट करने से पेन सबसाइड हो जाता है, एक्सेसिव एक्सर्शन की वजह से पेन पेशेंट को बढ़ भी जाता है। अगर पेशेंट को पेन बहुत हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को मॉर्निंग स्टिफनेस भी देखने को मिलती है कि लगभग 15 मिनट जो है कि मॉर्निंग स्टिफनेस पेशेंट को देखने को मिलेगी। यूजुअली वन और अ फ्यू जॉइंट पेनफुल, पेशेंट का एक जोड़ा जो है वो भी पेनफुल हो सकता है, कुछ जोड़ होते हैं वो भी पेनफुल हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। पर जनरली यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो होता है वो एसिमेट्रिक होता है, लेकिन एक एज के बाद में अगर बहुत ज़्यादा एज है पेशेंट की तो धीरे धीरे मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट की वजह से सिमेट्री भी देखने को मिलती है। पर जनरली अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक जो बेसिक डिफरेंस यही होता है कि इनिशियली और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की शुरुआत से ही जो प्रेजेंटेशन होती है वो सिमेट्रिकल होती है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक जॉइंट भी अफेक्टेड हो सकता है और फ्यू जॉइंट्स कैन बी अफेक्टेड। सॉरी। अगर हम क्लिनिकल साइंस की बात करें कि किस तरह के क्लिनिकल साइन पेशेंट को प्रेजेंट होते हैं, तो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ड्यू टू कैप्सुलर थिकनिंग, थिकनिंग के कारण पेशेंट के मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होंगे। ऑस्टियोफाइट्स की वजह से भी मूवमेंट जो है वो पेशेंट के रिस्ट्रिक्टेड होंगे। जॉइंट को अगर हम पाल्पेट करें तो समटाइम्स ऑडिबल कोर्स क्रेपिटस ड्यू टू रफ आर्टिकुलर surfaces, bony swelling around joint margins, deformities usually without instability, joint line or periarticular tenderness, muscle weakness and wasting, mild and absent synovitis. The correlation between the presence of structural change and symptoms such as pain and disability is stronger at the hip than at the knee. Poor at some small joints. This suggests the risk factors for pain and disability may differ from those of structural changes. At the knee, for example, reduced quadriceps muscle strength and adverse psychological factors like anxiety and depression correlate more strongly with pain and disability than the degree of radiographic change. कि यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रेंथनिंग अगर वो उतना स्ट्रेंथन नहीं है, मसल वीकनेस है, तो वो भी और जो होता है ना उसकी वजह से भी जो होता है ना ये जॉइंट के ऊपर प्रेशर जो होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा जाता है। तो कई बार ये ऐसा होता है कि अगर हम अफेक्टेड जॉइंट का एक्सरे कराते हैं तो किसी तरह का कोई रेडियोग्राफिक चेंज वहाँ नहीं आता, लेकिन फिर भी पेशेंट को जो पेन की कंप्लेन है तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को मसल स्ट्रेंथनिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा कुछ एडवर्स साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो भी स्ट्रांगली पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन, इन वजह से भी पेशेंट को पेन की कंप्लेन हो सकती है। तो अगर पेशेंट को रेडियोग्राफिक चेंजेस नहीं है
तो हम इन कारणों की तरफ भी विचार कर सकते हैं, इन कारणों का भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो आज के सेशन में हमने पढ़ा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस किसे कहते हैं, किस तरह के डिफाइनिंग फीचर्स जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए प्रेजेंट होने चाहिए कि पेशेंट के कार्टिलेज में फोकल लॉस, सबकॉन्ड्रल ऑस्टियोस्क्लेरोसिस, osteophyte formation in joint margins and remodeling of joint contour with enlargement of affected joint। अगर हम देखें तो कौन से केसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो नी ओए के केसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की तरफ जाएं कि किस तरह की पैथोफिजियोलॉजी यहाँ देखने को मिलती है, तो दोनों तरह के जो कंपोनेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल बोथ कंपोनेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज। और जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं वो भी एक की रोल यहाँ प्ले करते हैं, और किस तरह के केसेस के अंदर किस किस तरह का कितना परसेंट जो है इन हेरिटेबिलिटी जो होता है ना एस्टिमेटेड है, वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो जेनेटिक जो है किस तरह की चीज़ें जो रिस्पॉन्सिबल होती है, वो जहाँ पे स्केलेटल डिस्प्लेशिया की स्केलेटल सिस्टम जो है उसका डेवलपमेंट ही प्रॉपर नहीं हुआ है, ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी पेशेंट को है, या हिप जॉइंट जो है उसका ही डिस्प्लेशिया है, फॉर्मेशन एबनॉर्मेलिटी है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, स्लिप्ड फिमोरल एपिफाइसिस है पेशेंट को, तो ये कंडीशन की वजह से पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी डेवलप हो जाता है। रिपीटेटिव लोडिंग हमने पढ़ा ही था, फार्मर माइनर एलीट एथलीट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका कारण है रिपीटेडली पर्टिकुलर जॉइंट जो है उसके ऊपर उसका एक यूज़ बहुत ज़्यादा होना, या फिर वो जॉइंट के ऊपर लोड जो होता है हर समय मेंटेन रहने की वजह से। इसी के अलावा बायोमैकेनिक्स हमने देखे थे कि जो सर्जिकली कुछ प्रोसीजर्स कराने के बाद में पेशेंट को डेवलप हो जाता है, जैसे मेनिसेक्टमी या फिर लिगामेंट रप्चर का करवाया, या फिर पेजेट डिजीज, ओबेसिटी, हार्मोनल ट्रॉमा, इन सभी कारणों के जो है रिस्क रहता है। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरीके से जो क्या यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी चलती है, ये एक एक्सरे है जॉइंट का, जिससे भी हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि किस तरीके से इस इमेज के माध्यम से हमने देखा अर्ली स्टेज और लेट स्टेज में किस तरह के सिम्टम आते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स की प्रेजेंटेशन होती है, किस तरह के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस सेशन। If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will try to resolve it soon. Thank you.